welcome to our show, Health Dialogue. I'm Anshima. Today we have with us an exceptional personality who is a famed gynecologist and an excellent speaker, someone who's very vocal about women's health. Welcome, Dr. Aruna Kalra. Welcome to our show. Thank you very much, Ashima. It's my pleasure to be on your show. So my first question is, what inspired you to choose a career in gynecology, and what drives your passion for this in this field? Okay, so Ashima, from very beginning, I would say from my childhood, I wanted to become a doctor. My doll was always a doctor, and if she was not a doctor, I would not play doll. I don't know from where it came. Why I always wanted to become a doctor, because my parents were not doctor. Nobody in my relatives was doctor. But I guess I had a group of friends who were all preparing for PMT, and that's how I thought that, okay, doctor is the thing which I would want to become. But that was certain that I was confident that if not doctor, nothing else. But when I joined MBBS and then in my post-graduation years, that's when the interest actually started developing. In those postgraduate years, I was in government hospital. I would see pain, psychological, mental, physical, of all those very low socioeconomic strata women. And then in corporate hospitals also, even if they were educated, even if they were in from very good affluent society, there was a pain. And I think as a woman, I was able to relate to that. Because when I felt that what all they were going through, everything as a woman I was also going through, as a female I was also going through. And that's when this profession needs empathy, compassion, and psychological mutual relationship development between a patient and a gynecologist or obstetrician. So I think from there on, it was my passion. I just loved this job through and through. And those government hospital patients, when they were delivering girls after girls and they were crying and they were not taken care of, everything which I was also going through, that's how I think from there the passion picked up. And today is a day I work for pleasure. This is not my job. This is my passion. This is what I would do ever and ever in every life. That's excellent. I think very few people have said this, that the work is pleasure. So it's like, can you describe your journey as a gynecologist and share some memorable moment where you feel that this is the something when you are struggling, like back then in your studies days, this is that moment. This is that very moment you want to become a doctor. Yeah, so Ashima, there are many moments I can share. My journey, as I told you, that it was from the time I joined post-graduation in OBGYN. It started with pleasure, with all. So from here, I'll tell you, I've presented a TEDx talk also. The topic is I Want a Boy. From there on, I started writing also those stories which I was living through my patients. So there are very many moments of happiness, of grief, of sadness. And if patients think that so this is the beautiful moment when you hand over a baby to a mother, and when she starts breastfeeding or when she cries after seeing her crying baby, that is the most beautiful moment for anybody. So it is a miracle, and it has not stopped even today, giving me happiness even after thousands and lakhs of deliveries. And there were sad moments also when I cried. I prayed to God against all norms and everything, that God, please this time let her deliver a boy, because I was delivering girl after girl on her. She was delivering fourth and fifth girl with me, and every time she was coming to me because she knew that she's in safe hands. And I was telling her that I might be I don't know, I'm not able to deliver a boy for you, but she kept coming. And see, these are very
illogical things. But when she delivered a boy, I was the one who was most the happiest person. Today, that lady might not come back, but I would remember her every day, that I was praying for her every day. I kept fast for her, and this is so illogical for a gynecologist who is seeing patients every day. I'm seeing gynecological cancer, I'm treating cancers, I'm treating everything. Like obstetrics is a miracle. Gynae is a science. When I do gynae, I know that this is a planned surgery, this is a cancer surgery, this is a fibroid surgery. I know my art. I know that laparoscopically I can beautifully remove all the fibroids from a young girl's womb and reconstruct that womb. That is a science, okay? That is an art. That I know it's good. But obstetrics, giving birth, is not a science. It is just a miracle. During delivery, anything can go wrong. They trust they trust all their health and everything. They trust me fully. They have faith in me. And it is not 2 and 2, 4. It's like at the last moment, baby's heartbeat would drop and you would find that there's cord thrice around the neck. You have to pull through vacuum. Baby should cry immediately. That's obstetrics. And it is like, it gives high to you. It is every time very so exciting. And they are so, that's what I'm telling, they were so very moments of happiness, of grief. There was one time when I was in government hospital, and there was a lady who was 8th time pregnant, and I was scolding her that I'm not going to let you go inside the labor room. मैं जाने नहीं दूंगी जब तक कि तुम स्टरलाइजेशन के फॉर्म पर साइन नहीं करती. तुम्हारी हालत इतनी बुरी हो रही है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, यू आर एनीमिक, तुम बिल्कुल फ्रेल हो गई हो बच्चे पैदा कर करके. अपनी हेल्थ पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हो, क्यों नहीं बंद कर रही हो ये बच्चे पैदा करना. And she kept waiting. She did not, she was just crying with pain and sitting. And I was like, okay, जब तक sterilization form पर sign नहीं करोगी, मैं नहीं अंदर जाने दूंगी. And then we went on with patients. We were busy admitting other patients. And suddenly one big fist came and it banged my table. क्या चाहती हैं डॉक्टर साहब आप? क्या किस फॉर्म पे साइन कराना चाहती हैं? तो मैंने उस आदमी को देखा, हट्टा कट्टा फटानी सूट में. आई वॉज लाइक ओ माई गॉड. एंड सेड मैं इसका पति हूँ. ही वॉज लुकिंग मच यंगर, बहुत अच्छा स्मार्ट बंदा. क्या कह रही हैं आप उसे स्टरलाइजेशन फॉर्म पर साइन कराना है? हमारे मज़हब में नहीं है ये. आप दिखाइए कैसे नहीं कराती हूँ उसकी डिलीवरी. मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भैया मैंने सिर्फ एक सजेशन दिया था. एंड एवरीबडी लाफ्ड एट मी, एवरी सिस्टर, एवरी जूनियर डॉक्टर, एवरीबडी लाइक अभी तक तो बहुत तेज़ बन रही थी आप, उनसे कह रही थी कि स्टरलाइजेशन पे फॉर्म कराइए. अब एकदम आप चुप हो गई और कहा कि नहीं ठीक है, इसको अंदर लो, इसकी डिलीवरी कराओ. सो देयर वाज सम फन मोमेंट ऑल्सो. सो वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट हैप्पीनेस फ्रॉम ऑल दोज मोमेंट व्हेन वी actually I felt very stupid at that point of time. But yes, so as I said that I drive happiness. This is the best thing which could happen to me, which God could have given to me, the medical profession. Yeah, excellent. I have a follow-up question regarding this. Do you think that right to conceive should be a woman right only? It's not about partnership. Like, yes, absolutely. See, on this follow-up question, I would say that there is a big stigma here in India and in most of the world. We do not have right to use contraception. So there are many contraception which people are not, first thing, they are not educated about. So people who are illiterate, they do not know what contraception they can use. If we force upon them, like for this lady, or in government hospital we ask them to use copper T, or give them options for many other contraceptive injections every 3 months or Implanon every 5 years, they do not have right. So they have to ask their family, mostly their sasural or husband's family. And again, because age-old myths and everything, those people also would deny their right of using contraception. A condom husband would not use. Oral contraceptive pills are blamed to have so many side effects. They would make you obese. They would they can cause cancers.
adolescents, young girls who are in live-in relationship, they are becoming pregnant, unwed situations, and they are also not ready to use contraception, which is like it is their right to use contraception. You cannot teach or preach abstinence to young girls or young boys. So they should have this education and access to contraception. And as you rightly said, yes, we are not given right, and we must be sitting in now in good corporate hospital treating those 2% population who's educated, but 98% population is still ignorant about contraception. ना उन्हें जानकारी है, और जिनको जानकारी है वो गलत जानकारी है, और अगर है जानकारी तो उनको उनके ससुराल की तरफ से वो यूज़ करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं मिलता है कि वो अपने एक बच्चा करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, या 3 लड़कियों के बाद लड़का, और दे कैन गो ऑन लाइक दिस। ये बिल्कुल रेलेवेंट है, और मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ इस बात से कि इसके लिए हम लोग आजकल मीडिया इतना ज़्यादा, सभी लोग, सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास फ़ोन है, सबके पास इंस्टाग्राम है। एक छोटे से छोटे गांव में भी सब लोग इंस्टा पर देखते हैं। फिर अगर हम मॉर्निंग आफ्टर पिल या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जो कि गलत चीज़ है, जो सब लोग ले रहे हैं, उसको इतना फैला सकते हैं, और एक सोप की इतनी ऐड कर सकते हैं, या एक किसी फालतू की चीज़ की इतनी ऐड कर सकते हैं, तो क्या हम कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में उसी इंस्टा पर रील्स नहीं बना सकते हैं? क्या हम नहीं कर सकते हैं? मगर मुझे नहीं समझ में आता कि हम लोग क्यों नहीं इसको स्प्रेड करना चाहते हैं, इस एजुकेशन को। Yeah, right. That's very. Yeah. So how has modern lifestyle affected the concept of pregnancy? Has it become more complex? Yes, आशिमा, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। पहले वाले ज़माने में जब हमें कुछ एजुकेशन नहीं थी और एक्सेस भी नहीं थी, आयरन टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट, टेटनस इंजेक्शन, तब भी वो, और यंग मदर्स थी, 20s में थी, दे वुड डिलीवर, दे वुड ब्रेस्ट फीड फॉर अ ईयर और 2, and they would take care of their kids, and we have come out very well, okay? But आजकल की माएँ और पेरेंट्स वो प्रेगनेंसी के फर्स्ट डे से ही दे स्टार्ट treating themselves as something special. It is a normal physiology. If you are pregnant, you do not need extra care, okay? You have to work as anybody else is working. So they stop exercising, they stop working, they stop bending, they stop driving, they stop everything. And then there are new age myth, like you cannot have papaya, pineapple, mango, grapes, bangan, I don't know क्या चीज़ें हैं। आप लोग होम वो डिलीवरी वाले फूड सब खा लेंगे जो कि गलत है, मगर आप सब फ्रूट्स वेजिटेबल में मिथ लगाकर बैठ जाते हैं कि ये नहीं करना, बेंड नहीं करना, पेन नीचे गिर तो हस्बैंड उठा के दे रहे हैं, जूते हस्बैंड पहना रहा है। भाई क्या बात है, आप प्रेग्नेंट हैं, कोई पहली बार ज़िंदगी में तो हुए नहीं हैं, सारे जानवर डिलीवर हो रहे हैं, गाँवों में सब लोग डिलीवर हो रहे हैं, सब लोग घरों में अभी भी डिलीवर हो रहे हैं, तो आप ऐसा क्या हो गया? तो ये इतना जो एक उसकी चारों तरफ आई वुड से कि इसको मार्केटिंग ज़्यादा हो गई है, इतना पब्लिसाइज हो रहा है, इतना मार्केटिंग हो रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी, आपको फलाना तरह की क्रीम लगानी है पेट पर, और आपके स्ट्रेच मार्क नहीं बढ़ेंगे, और आपको ये फलाना तरीके के सप्लीमेंट्स लेने हैं कि आपको बच्चा सारे ही प्रेसिडेंट बन जाएंगे। वहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आता कि इतना क्या DHA और इतना क्या है, पहले वाले लोग नहीं बन रहे थे क्या, पढ़ नहीं रहे थे? अब हमें वो खाने में भी, वो सप्लीमेंट्स में भी, वो शूट्स हो रहे हैं, आपके मेटर्निटी शूट्स हो रहे हैं। अच्छी बात है, यू शुड सेलिब्रेट everything in your life, and this is very good. But after that, once you have been through those 9 months, जैसे ही बच्चा पैदा होता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए you are helpless. बिकॉज यू हैव ऑल दीज मिथ्स कि पहले दूध आएगा कि पहले बच्चा पिएगा, नहीं समझ में आ रहा, शकल ही नहीं करने दे रहे बच्चे को, दूध को नाप कर निकल नहीं रहा, इतने ml आ रहा है, अंडरमाइन कर रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस को। जस्ट सी अराउंड यू, बी लॉजिकल, every mammal is feeding their child, newborn child. Why can't you? Just because you have alternative, just because you have breast pumps, just because you have formula feed, it does not mean that you should fall for all those things. एक औरत जो लेबर क्लास है, जो विलेजर है, वो भी तो अपने बच्चे को 1-1 साल दूध पिलाती है, 5-5 साल दूध पिलाती है। आप लोगों ने उसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी को, प्रेगनेंसी को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना दिया है? बी ईजी विद योर प्रेगनेंसी। येस, देयर कैन बी कॉम्प्लिकेशंस इफ़ यू आर
एन एल्डरली प्राइमी, आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आपकी क्योंकि ज़्यादा एज या रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से आपको हाई बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, आप स्मोक कर रही हैं, आप अल्कोहलिक थी या कोई भी और डिज़ीज़ है आपको, तो हम लोग आज सिर्फ आपकी प्रेगनेंसी को, नॉर्मल फिजियोलॉजी को ट्रैक पर रखते हैं कि अच्छा अगर बीपी है तो कम रहे, शुगर है तो नॉर्मल रहे, मगर अदरवाइज़ वो नॉर्मल है। लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी भी नॉर्मल होगी। एज की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं विच आई वुड अग्री कि वो पहले ज़माने से ज़्यादा होती हैं, बट स्टिल दैट कैन बी डेल्ट विद। उसके साथ और अपने मिथ एसोसिएट करके उसे और कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। या जैसे हम देखते हैं आजकल लाइक योगा क्लासेस, लाइक प्रेगनेंसी योगा एंड ब्रेस्ट फीडिंग क्लासेस, देयर इज अ ट्रेंड एंड पीपल आर कैचिंग दीज ट्रेंड्स, और वो फिर जो मेन प्रेगनेंसी का जो टेक केयर है, लाइक अदर थिंग्स, वो मिस हो रहा है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सो आशिमा, आई वुड से कि ये ट्रेंड तो सब ठीक हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं, घर के काम मेड्स करती हैं, तो आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं और पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आजकल फीमेल्स भी वर्किंग हैं, तो आप घर के पोछे झाड़ू लगाकर ऑफिस का काम तो नहीं कर पाएंगी। मगर फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो योगा हो गया या फिजिकल ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर हो गया, आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए ज़रूरी है। आपकी कोमॉर्बिडिटी, जैसे मैंने कहा डायबिटीज़ या है, हाइपरटेंशन है, वो सब कुछ ठीक करना है। बच्चे का ब्लड फ्लो तब बढ़ेगा जब आप अच्छे से योगा करेंगे, तो ब्लड सप्लाई अच्छे से जाएगी, बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ेगा। फॉर नॉर्मल वैजिनल डिलीवरी ऑल्सो यू नीड टू बी फिजिकली active, which I absolutely accept कि I would not ask you to do झाड़ू पोछा घर पे physically active. You devote 1 hour of yoga to yourself और उसमें आप एक physical discipline fitness regime follow करिए। सेम वे जैसे आपने कहा कि लैक्टेशनल काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो ज़रूरत सिर्फ इसलिए पड़ रही है कि अगर हमारे घर में हमारी सास माँ हमारे साथ रहती होती तो वो हमें सिखाई देती। अब न्यूक्लियर फैमिली है, आपकी माएँ भी अभी तक भी वर्किंग होंगी, वो भी अपने प्रोडक्टिव लाइफ में होंगी, तो दे माइट नॉट बी एबल टू डिवोट ऑल दोज मंथ्स टू यू। तो अगर आपको लैक्टेशनल काउंसलर की ज़रूरत पड़ रही है तो दैट्स ओके, वी हैव ऑल दी फैसिलिटीज़ फॉर यू। अभी जो ज़्यादा कॉर्पोरेट इंडिया है, जो मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज़ में है, क्योंकि वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो उनके लिए हॉस्पिटल सब सपोर्ट सिस्टम देता है। अगर वो सपोर्ट सिस्टम कर योगा कर लैक्टेशनल काउंसलर कर आपको हेल्प मिलती है, तो वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू टू हेल्प। Yeah, so as a doctor, what do you think about health literacy in like present scenarios? सो हेल्थ लिटरेसी आई वुड से कि 2 तरीके हैं, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक हेल्थ लिटरेसी है जो आप गूगल ज्ञान कहते हैं जिसको, वो तो हेल्थ लिटरेसी नहीं मानी जाएगी। एक आज की डेट में भी अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है और वो डॉक्टर के पास आकर ये समझता है कि उसने गूगल से जो ज्ञान लिया है वो काफ़ी है, या वो उस स्ट्रेस को लेकर आता है कि मुझे सिस्ट है तो वो तो कैंसर ही है, क्योंकि गूगल ने तो सारा ही आपको पूरे चैप्टर पढ़ा देना है फर्स्ट से लास्ट तक, वो गलत है। तो हेल्थ लिटरेसी जो है वो रॉन्ग तरीके से आपको मिल रही है, और जो जैसे अभी बताया कि मिथ उसके साथ ज़्यादा है, और वो भी सारे मिथ आपको ऑनलाइन ही मिल रहे हैं। और वो जो ऑनलाइन आप फिल्टर तो नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो इसीलिए भी शायद मुझे लगता है कि आपको क्लासेस की ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए भी मुझे लगता है कि डॉक्टर्स भी आप लोगों के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं, ज़्यादा काउंसलिंग करते हैं। एक ओपीडी का सेशन, आप मेरे ससुर डॉक्टर थे, और वो जब पेशेंट के साथ बैठते थे और पेशेंट अगर दूसरा सवाल, जैसे पेशेंट की नब्ज़ देखी, खांसी जुकाम में बुखार देखा, दवाई लिख दी और आगे बढ़ो, क्योंकि 150 की ओपीडी है। अगर उसने एक सवाल पूछा तो उसको तड़ाक चांटा लग जाता था कि सवाल मत पूछो, तुम्हें देख लिया, दवा दे दी, आगे बढ़ जाओ। अब हम जब बैठते हैं तो 20 मिनट का सेशन लेते हैं। सिर्फ पेशेंट प्रेग्नेंट है वो नहीं देखते हैं, पेशेंट क्या काम करता है, उसके चारों तरफ का साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी फिज़िकल फिटनेस का क्या रेजीम या रूटीन है, सारा कुछ पूछा जाता है। खाना क्या खाता है, कितनी बार ये मंगवाता है खाना। तो आप सोचिए कि मेरी जो ओपीडी में जब मैं एक नया पेशेंट देखती हूँ तो उसमें मुझे आधा घंटा लग जाता है कि आपका फिज़िकल फिटनेस बिल्कुल भी नहीं है, आप ये खाना खाती हैं, आप ये ऐसा खाना खाइए। तो
आप लोग, मुझे लगता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो रहते हैं, यू आर लकी दैट यू हैव गॉट डॉक्टर्स ऑल्सो हु आर transforming, who are giving you much time and proper medical education. And so instead of taking online health education, you should come to the doctor, ask for proper books. If they can refer to you proper books, do not go for wrong health gyan. Go for a right kind of books, right kind of health knowledge. Yeah, right. So why do people tend to focus less on postnatal care? Like, Yeah, which is very, very important. Very important. Postnatal care, 90% females after delivery go for postpartum blues. Not depression. Depression is only Yeah. 2 to 10%, but postpartum blues. And care is given less. Yes, absolutely. It was never there before also, और आज की डेट में भी नहीं है. कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सिर्फ ये कि पहली बात एक्सेप्टेंस, हम ये मान ही नहीं पाते कि ये जो मदर है जो अभी बच्चा पैदा किया है वो रो रही है या वो लो फील कर रही है या उसको नींद नहीं आ रही या वो लो इन कॉन्फिडेंस फील कर रही है. ये नॉर्मल हो सकता है. ये नॉर्मल क्यों नहीं हो सकता है? वो एक नई माँ है, वो अभी तक उसके जो हार्मोन्स थे वो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन था, अभी एकदम विथड्रॉवल हो गया उन हार्मोन्स का, वो एकदम नीचे चले गए. प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जो कि मदरली हार्मोन्स हैं, जो कि बहुत कंपैशन और लव और केयर वाले हार्मोन हैं, वो बढ़ गए. तो वहाँ पर ब्रेन में तो अफेक्ट होंगी ही वो सारी नर्व सेल्स. तो वहाँ पर अगर वो सडनली शी इज़ क्राइंग तो वो माना जाता है कि क्यों रो रही हो, ऐसा भी क्या है. एक्सेप्टेंस नहीं है फैमिली में, एक्सेप्टेंस नहीं है रिलेटिव्स में कि ऐसा हो सकता है. एंड देन शी इज़ गोइंग थ्रू सो मच ऑफ पेन. किसी का सिजेरियन है तो पेट में दर्द है, नीचे एपिजियोटमी में पेन है, अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मिल्क प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, निपल में दर्द हो रहा है, क्रैक निपल हो रहे हैं, खाने को वो नहीं मिल पा रहा जो वो चाहती हैं खाना. तो विद ऑल ड्यू गुड इंटेंशन आपकी मदर और मदर इन लॉ आपको खिचड़ी दलिया या ऐसा ब्लैंड खाना देंगी या घी वाला. इंटेंशन तो बहुत अच्छी है उनकी, वो चाहते हैं कि आपका पेट ठीक रहे, आपकी हड्डियां मजबूत रहें, आपके बच्चे को पेट में दर्द ना हो. मगर वो इंटेंशन और आपका यू डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग कि अचानक से मुझे बस ऐसा ही खाना दिया जा रहा है या मुझे कहा जा रहा है कि एक कमरे में बैठे रहो या सर पर मफलर बांधो और पति से भी ना मिलो. एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी हग, एनी किस फ्रॉम योर पार्टनर, जो कि 9 महीने से आप लोग एक साथ क्लोज नेट होकर फ़ोटो शूट कर रहे हैं और बच्चे की शॉपिंग कर रहे हैं, और आज 40 दिन के लिए हस्बैंड को बाहर निकाल दिया जाता है और आपको अकेले पेन लेना है, चाहे वो ब्रेस्ट का पेन है या फीडिंग का पेन है या खाना अच्छा नहीं मिल रहा. फिर आपको वो कॉन्फ्लिक्ट वो शुरू हो जाता है कि भाई वो तो आराम से जी रहा है, वो तो पूरा सो रहा है, मैं तो इसमें आ गई. एंड देन रिलेटिव्स ऑल्सो स्टार्ट अंडरमाइनिंग दैट यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर मिल्क, योर चाइल्ड इज़ नॉट गेटिंग प्रॉपर फीड. अब ये इतना सब कुछ चलता है तो एक हैप्पी मोमेंट होता है जिसमें कि आपको बच्चा पैदा हुआ और सब लोग उससे रिलेट कर रहे होते हैं, मैं दादी, मैं नानी, मैं बुआ, मैं मासी. मगर आप उस बात से खुश नहीं होती हैं क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, मुझे आज साइडलाइन कर दिया गया. तो वो एक्सेप्टेंस आनी बहुत ज़रूरी है. मेंटल हेल्थ is important, psychological support is important. Husband should be around. अगर उसे घर जाना है, पैसा कमाना है, बहुत ज़रूरी है, मगर उसको कुछ टाइम के लिए अपनी बीवी, अपने बच्चे के साथ स्पेंड करना है, उसको सपोर्ट देना है. एंड इफ़ शी हैज़ समथिंग टू से कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, तो रेस्ट्रिक्ट मत करिए. हम लोग बिल्कुल मना नहीं करते हैं. आप चिकन खाइए, आप अंडा खाइए, आप कुछ भी खाइए, हर तरीका का फ्रूट लीजिए, सब कुछ. मगर क्योंकि विद ऑल गुड इंटेंशन दे डू नॉट वांट यू टू टेक ब्रिंग देम टू. हम लोग जैसे आज भी मैंने बर्थिंग प्लान क्लास लिया जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग और बर्थिंग प्लान हम हर संडे डिस्कस करते हैं, जो कि अभी डिलीवर होने वाला है. तो उनकी माँओं को, सासों को बुलाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि ये खाना पोस्ट डिलीवरी देना है. पंजीरी की जो रेसिपी है उसको इस तरीके से मॉडिफाई करके बनाना है कि उसमें कम घी और कम चीनी होना चाहिए, जिससे कि वो बाद में मोटे ना हो जाएं. तो वो गैलेक्टोगॉग है, उसमें सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं. आप उन्हें बनाइए, मगर इस तरीके से बनाइए कि कम घी हो. तो ये अगर हम उनको हर बार अपनी विजिट में भी लाएंगे, एंटीनेटल विजिट में और इन क्लासेस में भी लाएंगे, तो वो हम सब एक ही ट्रैक पर हो जाएंगे. फिर ऐसा नहीं होगा कि घर जाके वो
वो कुछ बोल रहे हैं कि काजल लगाना है और हम कह रहे हैं नहीं लगाना है, और वो कह रहे हैं कि घुट्टी पिलानी है और हम कह रहे हैं कि नहीं पिलानी है, अगर वो हर बार आपकी एंटीनेटल विजिट में आएंगे और नहीं आ सकते तो लास्ट की 2-3 क्लासेस में आएंगे, तो हम सब एक ही ट्रैक पर होंगे, डॉक्टर्स भी और आपके एल्डर्स भी, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, तो शायद पोस्टनेटल केयर और बेटर हो जाएगी। So what are your suggestions to new moms, like in perspective of breastfeeding and in perspective of mental health, So- what they should do or what not to? So it's not about new moms. Like, yes, new moms should not feel under confident about either breastfeeding or taking care of their child, or do not even think that there is nothing like perfect mother. ऐसा आप कुछ भी करेंगे आपको लगेगा कि आप कम कर रहे हैं। ज़्यादा करेंगे, अगर आपने अपने बच्चे को बहुत बहुत प्रोटेक्शन, बहुत केयर, बहुत प्यार दे दिया तो आप कहेंगे बिगड़ गया है, अगर नहीं दिया तो आपने उतना नहीं दिया, यू आर नॉट एबल टू डिवोट टाइम। तो ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग लाइक परफेक्ट पेरेंटिंग। यू हैव टू ओनली 3 थिंग्स, लाइक केयर, लव एंड सिक्योरिटी। उतना ही चाहिए होता है बच्चे को, आप जितना दे सकते हैं। आप भी तो फर्स्ट टाइम मदर हैं, आप अपने आप से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कैसे कर सकती हैं? यू आर नॉट अ सुपर ह्यूमन। आप खुद अगर एक हैप्पी मॉम नहीं होंगे तो एक हैप्पी चाइल्ड कैसे रियर करेंगे, उसको कैसे बढ़ाएंगे? योर चाइल्ड इज़ योर रिफ्लेक्शन। आप जैसे उससे बोलेंगे यू कैन एक्चुअली सी कि वो बच्चा वैसे ही बोलता है। आप प्यार से बोलेंगे तो प्यार से आंसर आएगा, आप ज़ोर से बोलेंगे तो ज़ोर से आंसर आएगा। आप इतना न्यूबॉर्न छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसको भी हरी बरी में सुलाने की कोशिश करेंगे, इफ़ यू हैव टू गो समवेयर, बच्चे को इतना समझ में आता है कि अब तो मैं सोऊंगा ही नहीं। अभी माँ जो है जाना चाहती है और मुझे जल्दी जल्दी सुलाने की कोशिश कर रही है, तो वो सोएगा ही नहीं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि दे आर सो इंटेलिजेंट एंड दे जस्ट नीड योर केयर, सिक्योरिटी, लव एंड कंपैशन। उसके अलावा आप अपने आप से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। एंड लेट द बेबी बी रियर्ड बाय एवरीबडी। सबका अधिकार है ना, कोई दादा है, कोई नाना है, कोई नहीं, जो जिस तरीके से पाल रहा है पालने दीजिए। आप भी तो पल गए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि अगर थोड़ा सा बिस्किट किसी ने दे दिया या कुछ अलग दे दिया जो आप नहीं देना चाहते। अपने आप को बहुत टैक्स मत करिए इस पेरेंटिंग के चक्कर में। बहुत पढ़ाई पेरेंटिंग के लिए पढ़ लिया आपने, ये कर लिया, ऐसा नहीं होता है कभी भी। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कि आप कितना भी कायदा पढ़ लें स्विमिंग पर, जब तक आप डाइव नहीं करेंगे तब तक स्विमिंग नहीं आएगी। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें पेरेंटिंग में, पहला बच्चा पैदा और पालने के बाद फिर भी आपको लगेगा कि दूसरा बच्चा आपने ठीक से नहीं पाल रहे हैं। कितना भी सीख लें पहले बच्चे में, दूसरे बच्चे में फिर आपको लगेगा कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है। So it's a normal thing. Do not stress yourself. Live with your child happily. Okay. And so there are अभी very social stigmas हैं in India में and gender को लेके. So what's your take in? So as I said, आशिमा पहले भी कि मैंने एक TEDx talk भी दी है उस पर, I want a boy. So it was so for on that I wrote all these stories and I think it's on with publisher. I hope to bring this book as soon as possible. This is about gender only. When I was in my post graduation and then I started my practice, it was so common. Everybody would want a boy only. Nobody would want a girl. If girl is delivered, they would be sad. There would not be any celebrations. After one girl, after two girls, they would come to me and ask कि what are the methods, किस तरीके से लड़का ही हो अगली बार ये किया जाए। ये सिर्फ अनएजुकेटेड लोगों में नहीं था, वहाँ तो मैंने गवर्नमेंट में तो जो हिनियस क्राइम देखा, आप वो स्वॉलो भी नहीं कर पाएंगे कि औरत को पता होता था कि वो डिलीवर होने वाली है, चौथा बच्चा है, पांचवा बच्चा है, वो बाथरूम में जाकर डिलीवर होती थी, जहाँ कि हम लोग नहीं एक्सेस कर पाते थे। और वहाँ पर जैसे ही उसने बच्चा बाहर निकाला और वो लड़की थी तो वहीं उसको गला घोट के मार दिया, और हम लोग वहाँ भागे भागे जाते थे और तब तक वो लड़की मार चुकी होती थी, क्योंकि वो उसकी 5वीं लड़की थी और उसे पता था कि उसको भी नहीं खाना मिलेगा, लड़की को भी उस तरीके से ही ट्रीटमेंट मिलेगा जैसी उसकी और 4 लड़कियों को मिल रहा था। तो वो अपने हाथ में उसकी लाइफ लेकर ख़त्म, यहाँ तक हमने देखा। और उसके बाद जब मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में आई तब मैंने बहुत एफ्लुएंट फैमिलीज़ को देखा कि वो
कुछ लोग स्पर्म सिलेक्शन के लिए जा रहे थे कि आप मेल स्पर्म को वॉशअप मेथड से ही IUI करके डालिए। तो ये वो लोग थे जो कि बहुत अमीर थे। और फिर और एक लेवल ऑफ अमीरी थी कि आप दूसरी कंट्री में जाइए जहाँ की IVF से आप सिलेक्ट कर सकते हैं मेल एम्ब्रियो और वही मेल एम्ब्रियो डलवा कर आइए। तो ऐसा नहीं है, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि एजुकेशन का तो कोई रोल है नहीं इसमें, तो किस चीज़ का है जहाँ कि हम फीमेल्स को नहीं चाहते हैं आना देना चाहते हैं। जहाँ पर इलिटरेट लोग ऐसा कर रहे थे और जो कि बहुत गरीब थे वहाँ पर वो भी लोग कर रहे थे जो बहुत अमीर थे, जिनको अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोई वारिस चाहिए था। तो ये तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत कुछ सरकार भी कर रही है और बहुत कुछ हो रहा है, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। आई जस्ट होप कि आगे कुछ सालों में ये चेंज हो जाए, मगर बहुत ही ज़्यादा दिस इज़ अ वेरी वेरी टची टॉपिक फॉर मी, दिस फीमेल feticide. So let's make it little bit lighter. So as a doctor, what you do, like as a creative person, what is the creative matter in you? Like what do you do? So Ashima, I love to dance. I tried many a times Bharatnatyam, Kathak, and still I have a guru. Whenever I get time, I go to her and learn few steps of either Bharatnatyam or Kathak, and we do dance practice. I am an avid reader. I read a lot. I've read many books, and there are very many books which I would read again and again. Animal Farm is one, Book Thief is another. And there is a beautiful line in Book Thief which I tell everybody, that competence is the most beautiful thing. It's the most attractive thing you can have. So we have a book club in which we have to read one book per month, and that's how we are introduced to many genres. So अगर मैं सिर्फ World War II पर ही पढ़ना पसंद करती थी या ऑटोबायोग्राफी ही पढ़ना पसंद करती थी, तो उन लोगों ने मुझे और बहुत सारे जॉनर्स ऐसे इंट्रोड्यूस कराए जो कि मुझे लगे कि हाँ ये भी बहुत अच्छे हैं। तो ये बुक क्लब ज्वाइन करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे अब एक बुक ख़त्म करनी ही है महीने में, क्योंकि हमें उसके क्वेश्चन आंसर्स उसको डिस्कस करना है। सो एंड देन दैट्स हाउ आई वॉज राइटिंग ऑल्सो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। दो स्टोरीज आई स्टार्टेड टू राइट, वो सारी की सारी फिर कंपाइल किया राइटिंग में। एंड अगेन नाउ आई हैव स्टार्टेड राइटिंग न्यू एज parenting and new age pregnancy, how to handle all the myths and everything. So I keep myself busy whenever I have some time. I would want to devote to either my dance, classical dance, or my reading or writing. So do you watch any sort of movies like No, I don't. No. I do not get time to watch, and I do not like to be on screen after answering all the WhatsApp messages and all the emails by patients. I just want to throw away my phone and screen. At the end of the day, I do not watch any kind of TV or screen. But having said that, I would say कि ये बहुत ही beautiful form of art है, जहाँ की direction, जहाँ की story line, जहाँ की मैं सुनती हूँ बहुत सारे ऐसे बहुत शुरू हुए हैं नेटफ्लिक्स वगैरह पर, और मुझे अच्छा लगता है देखना, मुझे पसंद है, मगर मैं थोड़ी देर के बाद नहीं देख पाती, आंखें बहुत थक जाती हैं। मगर वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज यंग आई वाज एडिक्टेड टू मूवीज़, बट अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मगर ये एक फॉर्म ऑफ आर्ट, क्योंकि मैं ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ की बहुत फ़ैन हूँ, गुरुदत्त और देवानंद और उनकी, और गुरुदत्त की जो डायरेक्टेड मूवीज़ हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उसकी फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी लगती है, ब्लैक एंड वाइट एंड ऑल। एंड व्हेन आई वॉच ऑल दीज सीरीज़, I watch because it has so much of creativity by such a big team, and which is very good. I appreciate that. It's really nice talking to you. Thank you, Dr. Aparna Kalra.